Hello students, we will continue further with your doubts. Okay, so in this video I'll solve more questions. I'll take up more doubts, okay, that you have sent me. So I'll go on to question number 53 now. Now in question number 53 it is given to you. क्या पूछा गया है? The number of liters of air required to burn 8 liters of C2H2. So आपको number of liters of air पूछा गया है. Air to burn 8 liters of C2H2. Okay. Now C2H2 को बर्न करना हो तो इसका रिएक्शन बर्निंग मतलब आपको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाना पड़ेगा एंड इट विल फॉर्म CO2 एंड H2O. Okay. Now बैलेंस करो सो 2 कार्बन एटम्स सो 1 H2O, 2 2s are 4 प्लस 1 5 तो ये हो जाएगा 5/2. Okay. Now if you look at this reaction, what does this reaction tell you? This reaction tells you that, so this is a gas, this is a gas. So 1 mole of C2H2 reacts with 5/2 moles of O2. But ये liters में दिया हुआ है, तो because these are gases आप moles को volume से replace कर सकते हो. So I can write 1 liter of this reacts with 5/2 liters of this. Correct? अब आपके पास 8 liters of C2H2 है, तो if you have 8 liters of C2H2 तो ऑक्सीजन के कितने लीटर्स चाहिए होंगे? लेट्स कॉल इट एज X. तो रेशियो दे दे. सो 1/8 इज इक्वल टू 5/2/X. सो 1/8 is equal to 5/2X. So therefore X becomes equal to 20. So therefore volume of oxygen is 20. Volume of oxygen required is 20 liters. आपको वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन नहीं, आपको वॉल्यूम ऑफ एयर पूछा गया है ना. नाउ रफली आपको ये पता है ना, एयर के अंदर यू हैव मेजरली ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, एंड एयर के अंदर ऐसा कुछ कंपोजिशन होता है रफली, नॉट एग्जैक्ट, 20% ऑक्सीजन होता है एंड 80% जो होता है दैट इज नाइट्रोजन. So I know that volume of oxygen we require is 20 liters. What would be the volume of air? So percentage of oxygen is simply equal to volume of oxygen divided by volume of air into 100. Now oxygen का percentage 20% होता है air के अंदर, so left hand side would be 20. वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हमें पता है दिस इज 20 into 100 वॉल्यूम ऑफ एयर, ये कट हो जाएगा. सो वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी इक्वल टू 100 लीटर्स. तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? यहाँ पे हमने ये यूज किया हुआ है. दिस इज व्हाट वी हैव यूज्ड. ठीक है, फाइन. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें डाउट है दैट इज क्वेश्चन नंबर 55. ओके, so let me go on to question number 55. Okay. Question number 55 में if 8 ml of uncombined oxygen remains after exploding oxygen with 4 ml of hydrogen, the number of milliliters of oxygen originally were. ओके, नाउ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को जब आप एक्सप्लोड करते हो तो क्या मिलता है आपको? सो H2 प्लस O2 गिविंग यू 2H2. ये आपका रिएक्शन होता है ना, 2 molecules of H2 react with 1 molecule of O2 to form 2 molecules of H2O, या फिर 2 liters of hydrogen reacts with 1 liter of oxygen to form 2 liters of water. So what you realize over here is 2 liters of hydrogen react with 1 liter of oxygen. Okay, ये इनका रेशियो है. अच्छा, अब इन्होंने आपको ये दिया हुआ है 8 ml of oxygen is uncombined. So 8 ml of oxygen is unreacted. So ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज बेसिकली योर एक्सेस रिएजेंट, क्योंकि ये बच रहा है ना.
हाइड्रोजन इज योर लिमिटिंग रिएजेंट. ओके. अब इन्होंने क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि आफ्टर एक्सप्लोडिंग ऑक्सीजन विथ 4 ml ऑफ हाइड्रोजन, सो वी हैव 4 ml ऑफ हाइड्रोजन. अच्छा, now according to this reaction you know that 2 liters of hydrogen reacts with 1 liter of oxygen. So ये रेशियो 2:1 का है ना. तो इफ यू हैव 4 ml ऑफ हाइड्रोजन, कितना ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा? हाउ मच ऑक्सीजन वुड रिएक्ट? सो फॉर एवरी 2 1 रिएक्ट्स, सो फॉर 4 कितना रिएक्ट करेगा? तो ये हाफ रिएक्ट कर रहा है ना, 2 का 1, तो 4 का ये कितना रिएक्ट करेगा? 2 ml ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स. Okay. Now we have 8 ml of oxygen remaining. 2 ml of oxygen reacted. तो ओरिजिनली कितना होगा? Let's say ओरिजिनली आपके पास था x. x में से 2 रिएक्ट कर चुका है. तो कितना बचेगा? x minus 2. एंड हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है x कितना बच रहा है? 8 ml. So x minus 2 is equal to 8. So x will be equal to 10 ml. So original amount of oxygen that we had was 10 ml. So 10 में से 2 ml react कर गया and the amount remaining is equal to your 8 ml. I hope you have understood this. इसमें कोई doubt नहीं है. Next question is question number 60. Okay. Question number 60 पे जाता है. Okay. It is given to you that 10 ml of gaseous hydrocarbon, 10 ml of gaseous hydrocarbon on combustion gave 40 ml CO2 and 50 ml H2O. So आपको हाइड्रोकार्बन आइडेंटिफाई करना है. ठीक है. अब ये हाइड्रोकार्बन हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सी अंडरस्टैंड दिस. हाइड्रोकार्बन है तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन 2 ही एलिमेंट्स होंगे. तो लेट्स से दिस इज CXHY. ये हो गया आपका हाइड्रोकार्बन. नाउ व्हेन इट रिएक्ट्स विद O2, आप जब कंबशन करते हो तो इट फॉर्म्स CO2 प्लस H2O. X कार्बन एटम्स है तो इसको बैलेंस कैसे करोगे? यू शुड हैव X कार्बन एटम्स. Y हाइड्रोजन एटम्स है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स है तो आप इसको Y/2 से मल्टीप्लाई कर दो. तो Y/2 इंटू 2 करोगे तो यू विल गेट Y. ओके. एंड अब आपके पास ऑक्सीजन कितना होगा? सो सी टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड कितना है? 2 इंटू एक्स दैट इज 2x प्लस Y/2 इंटू 1 दैट इज Y/2. तो दिस इज 2x प्लस Y/2. ओके. तो अब यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन होगा, दिस ऑक्सीजन वुड बी इक्वल टू 2x प्लस Y/2 अपॉन 2. कारण क्योंकि आप इनको बस इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे you will get 2x plus Y/2. So this would be the amount of oxygen. Now what does this tell you? This tells you that 1 mole of this produces x moles of this and Y/2 moles of this. Okay. So this is gas, 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 gas. Okay. नाउ वाटर इज ऑल्सो, क्योंकि इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि वाटर जो होता है वो वाटर वेपर स्टेट में होता है. फाइन. अब इन्होंने क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 10 ml ऑफ दिस प्रोड्यूसेस 40 ml ऑफ CO2, ओके, एंड 50 ml ऑफ H2O. ना आप इसको वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हो ना. आई कैन राइट 1 ml ऑफ दिस produces x ml of this and Y/2 ml of this. अब आपको अगर जो x फाइंड आउट करना हो तो आपको बस सीधा रेशियो देना है. तो आप रेशियो कैसे दोगे? 10/1 is equal to 40/x. So x will be equal to 4. And similarly आपको y फाइंड आउट करना है तो 10/1 is equal to 50/y/2. तो यहाँ पे आप जब y कैलकुलेट करोगे यू विल गेट y एज 10. ओके. सो आपका जो हाइड्रोकार्बन है दैट इज CXHY, तो आपका हाइड्रोकार्बन हो जाएगा C4H10. दिस वुड बी योर हाइड्रोकार्बन. ठीक है. सो योर आंसर वुड बी 4th. 60 का आंसर जो है दैट विल बी 4th.
फाइन। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें डाउट है दैट इज क्वेश्चन नंबर 61। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 अगर जो करें हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 61 में क्या दिया हुआ है, 500 ml of gaseous hydrocarbon when burnt in excess of oxygen, so ये CXHY burnt with excess of oxygen produces 2.5 liters of CO2 and 3 liters of water vapors under same condition. Molecular formula of hydrocarbon is what? ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। So C6H5 plus O2, मैं सीधा रिएक्शन लिखता हूँ, you get XCO2 plus Y by 2 H2O. So I know that 1 liter of this produces X liters of this and Y by 2 liters of this. अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 500 ml, 500 ml मतलब हाफ लीटर हुआ, 0.5 liters of this produces 2.5 liters of CO2 and 3 liters of H2O. तो आपको हाइड्रोकार्बन आइडेंटिफाई करना है, तो वापस आप इसका रेशियो लोगे ना, जैसे हमने यहां पे दिया था। सो रेशियो लोगे तो व्हाट यू वुड गेट इज 1/0.5 is equal to x upon 2.5. So you'll get the value of x as 2.5 upon 0.5. You'll get x as 5. Y find out करना हो तो this upon this will be equal to this upon this. So 1/0.5 is equal to y by 2 by 3. Okay. So you will get y as 12. आप सॉल्व करो तो you should get y as 12. तो आपका जो हाइड्रोकार्बन होगा दैट विल बी C5H12. फाइन, ओके। अच्छा, ये जो डाउट्स आए थे ये सारे अनसॉल्व्ड शीट में से ये डाउट्स आए थे। अब कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स के भी डाउट्स आए हैं मेरे पास, तो आई डिस्कस दोस क्वेश्चंस नाउ। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट ऑफ विद सॉल्व्ड एग्जांपल्स नाउ। सॉल्व्ड एग्जांपल 8, what will be the volume occupied by 1 mole of atoms? So 1 mole of atoms is given to you. 1 mole of atoms is given to you for a monoatomic gas and for a diatomic gas. Gas and diatomic gas. At NTP. NTP is same as STP, okay? तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड आपको फाइंड आउट करते हैं तो फॉर्मूला ये होता है ना 22.4 into N. Now this N is basically not number of moles of atoms, these are number of moles of molecules. Okay. Now if you know number of moles of atoms, how can you find out number of moles of molecules? See, number of atoms, we know it is equal to number of molecules into atomicity. करेक्ट, ये हमने फॉर्मूला देखा हुआ है। अच्छा, अब दोनों साइड को अगर आप अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हो, so if you divide both sides by Avogadro's number, तो number of atoms divided by Avogadro's number is number of moles, small n. See, ये capital N है ना, capital N upon small, capital N upon Avogadro's number is small n. आपकी formula sheet देखो. So number of moles of atoms, आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा number of moles of atoms, राइट हैंड साइड हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अवोगाड्रोस नंबर से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इनटू एटॉमिसिटी। नाउ नंबर ऑफ मोल्स हमेशा लिखने के बजाय हम लोग सीधा ये लिखते हैं, ग्राम एटम इज सिंपली इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी। Gram atom means number of moles of atoms and gram molecule means number of moles of molecules. अब आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए
नाउ व्हाट इज मोनोएटॉमिक गैस? मोनोएटॉमिक गैस वो होता है जहां पे एटॉमिसिटी इज वन. एग्जाम्पल हीलियम, नियॉन, आर्गन. ये ना हीलियम मॉलिक्यूल बस He ही होता है, तो यू कैन सी दैट देयर इज ओनली वन एटम ऑफ He इन अ मॉलिक्यूल. वैसे ही नियॉन मॉलिक्यूल हैज ओनली वन एटम ऑफ नियॉन, आर्गन मॉलिक्यूल हैज ओनली वन एटम ऑफ आर्गन. अच्छा, डायटोमिक गैस वो होता है जिस मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स होते हैं, जैसे O2, N2, H2. You can see that one molecule of oxygen has two atoms, one molecule of nitrogen has two atoms. इसको हम लोग कहते हैं डायटोमिक गैस. यहाँ पे एटॉमिसिटी इज 2, यहाँ पे एटॉमिसिटी इज 1 and you have atomicity as 2. ठीक है. So अब हम लोग ये देखते हैं कि 1 mole of atoms is given to you, तो gram atom is 1. So in the case of monoatomic gas, for monoatomic gas, आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए, मतलब ग्राम मॉलिक्यूल्स चाहिए. ग्राम एटम्स हमें पता है, मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 1. सो आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा 1. दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी. मोनोएटॉमिक गैस के लिए एटॉमिसिटी इज 1. सो n इज इक्वल टू 1. n की वैल्यू 1 पुट करो तो वॉल्यूम विल बी 22.4 इंटू 1, दैट इज 22.4 लीटर्स. ठीक है. For diatomic gas, सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इज गिवन टू यू एज 1. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसको ग्राम मॉलिक्यूल कहा जाता है, हमें पता नहीं. एटॉमिसिटी फॉर डायटोमिक गैस इज 2, तो ये 2 पुट करेंगे तो n की वैल्यू आपको 1/2 आएगी. So now volume would be equal to, volume occupied would be equal to 22.4 into number of moles, that is 1/2, that is 11.2 liters. So STP and NTP is exactly same, okay, and NTP के लिए भी हम लोग ये same formula ही use करता है. Okay, so ये है solid example 8. I hope you have understood this, what is monoatomic gas, diatomic gas. Okay. अब इसके बाद जो नेक्स्ट सॉलिड एग्जांपल है, दैट इज सॉलिड एग्जांपल 10th. नाउ 10th सॉलिड एग्जांपल जो है वो ये है, व्हाट वॉल्यूम शैल बी ऑक्यूपाइड बाय 6.022 into 10⁻23 molecules of any gas at NTP. Okay. So 6.022 into 10⁻23 molecules, ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे at NTP? Now we know that volume at NTP is equal to 22.4 into n, and n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब आपको ये मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, तो हाउ डू यू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स? इट इज number of molecules divided by Avogadro's number. 6.022 into 10⁻23 divided by 6.022 into 10⁻23. So this becomes equal to 1. So आप यहाँ पे वैल्यू 1 पुट कर दो. So 22.4 into 1, you will get the answer as 22.4 liters. ठीक है. So ये हो गया. अब नेक्स्ट जो सॉलिड एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर 14, द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी इज गिवन टू यू. 1.429 grams per liter. This is given to you. आपको स्टैंडर्ड मोलार वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. Now let's try to understand this. स्टैंडर्ड मतलब एट एसटीपी और एनटीपी. मोलार मीन्स 1 मोल. सो आपको ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल.
1 मोल। अब आपको डेंसिटी दी हुई है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा ना कहीं पे। आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, दिस इज m, दिस इज v। सो अगर जो आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो इट इज मास अपॉन डेंसिटी। नाउ व्हाट इज द मास? डेंसिटी तो आपको पता है। नाउ इट इज गिवन टू यू दैट मोलार वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1। मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू O2 ऑफ O2 इज इक्वल टू 32। तो मास कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स इज 1, मॉलिक्यूलर वेट इज 32, सो दिस विल बी इक्वल टू 32 ग्राम्स। तो मास अब आपको पता है 32, आपको वॉल्यूम पता है 1.429 ग्राम्स पर लीटर, सो दिस इज ग्राम्स पर मोल। ओके, दिस इज ग्राम्स पर लीटर। सो आपका ग्राम्स और ग्राम्स कट हो जाएगा, आपका आंसर आएगा लीटर्स पर मोल में आंसर आएगा 32 डिवाइडेड बाय 1.429, 22.399 लीटर्स पर मोल। सी मोलार वॉल्यूम है ना, मोलार वॉल्यूम का यूनिट यही होता है, लीटर पर मोल। ठीक है, फाइन। ये आया आपको समझ में व्हाट वी हैव डन? सो आप देख रहे हो ये यही सेम सेट ऑफ फॉर्मूलेज है जो घुमा फिरा के हम लोग जो है वो यूज करें। वी आर यूजिंग दी सेम सेट ऑफ फॉर्मूलेज। अच्छा सॉरी, ये 14th क्वेश्चन नहीं था, ये 15th क्वेश्चन था। दिस वाज 15th क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन करते हैं। Okay, the question is, if 1 mole were to contain 10 raised to 24 particles, मान लो 1 mole has 10 raised to 24 particles, okay, then what would be the mass of 1 mole of oxygen? So mass of 1 mole of oxygen सी मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एटम, ये मैंने आपको बताया था। मास ऑफ 1 मोल इज सिंपली इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। अब ऑक्सीजन होता है O2, O2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32, सो इट विल बी 32 ग्राम्स ना। अगर जब आपको पूछा जाए कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, mass of 1 molecule would be equal to, okay, it will be equal to molecular weight divided by Avogadro's number. Avogadro number मतलब एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं। सो मॉलिक्यूलर वेट इज 32, Avogadro's number is अब 10 raised to 24 ना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 मोल has 10 raised to 24 particles. We'll get the answer as 32 into 10 raised to 20 minus 24 grams. दिस वुड बी योर आंसर। ये सारे जो क्वेश्चंस थे ये सॉलिड एग्जांपल, जो शीट 1 मैंने आपको दी थी, शीट 1 के ये सॉलिड एग्जांपल्स हैं। ओके, उसी तरह से शीट 2 जो है उसमें भी कुछ सॉलिड एग्जांपल्स है, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई डिस्कस सॉलिड एग्जांपल्स ऑफ द शीट 2। वो काफी अच्छे क्वेश्चंस है, सो आई डिस्कस दोज विथ यू। ठीक है, वी विल स्टॉप ओवर हियर। थैंक यू।